ہیلو کائناتیز، یہ جو اوریجنز کے یا شروعات کے سوال ہیں وہ بے انتہا دلچسپ ہیں کہ ہماری کائنات کیسے شروع ہوئی، یا ہماری جو زندگی ہے زمین کے اوپر اس کی اوریجنز کیا ہیں، یا زمین اور ہمارا جو نظام شمسی ہے وہ کیسے بنا۔ اب ایک نیا مشن ہے جس کا نام ہے لوسی، وہ کچھ ایسٹرائڈز کو آبزرو کرنے جا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اپنے نظام شمسی کی شروعات کیسے ہوئیں۔ اور یہ جو نام ہے لوسی، وہ دراصل آنر کرتا ہے ہیومن ایوولوشن کو، اور یہ جو مشہور بینڈ تھا بیٹلز کا، یہ اس کے نام کے اوپر ہے۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید۔ ہماری زمین یہ کافی ڈائنامک سیارہ ہے۔ اس کی جو سطح ہے، جو سرفیس ہے، وہ کانسٹنٹلی ری شیپ ہو رہی ہوتی ہے، والکنزم کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے، اور خاص طور سے پانی کی وجہ سے۔ یعنی کہ کانسٹنٹلی جو اس کی سرفیس ہے اس پر ایروژن ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو بہت سارے پرانے نشانات ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی ایسٹرائڈ آ کے ٹکرایا، اس کے نشانات زیادہ تر ختم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسٹرائڈز تو آ کر زمین کی تاریخ میں بہت سارے ٹکرائے، لیکن ہمیں ان کے نشانات بہت مشکل سے ملتے ہیں یا ملتے ہی نہیں۔ اب یہ جو اور سیارے ہیں وہاں پر بھی اسی قسم کی ڈائنامک ایروژن کے فیکٹرز ہوتے ہیں، مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، جہاں پر بھی آپ کو ایسٹرائڈز کے نشانات اتنے آرام سے نہیں ملتے۔ تو اگر آپ نے نظام شمسی یا ہمارے سولر سسٹم کی شروعات کو سمجھنا ہے تو آپ کو ایسے پیسز چاہیے جو ایک لحاظ سے ٹائم کیپسول ہوں، جو کہ ہمارے 4.4 ارب سال کی جو تاریخ ہے اس میں زیادہ نہ بدلے ہوں۔ اور اس قسم کا ٹائم کیپسول جو ہے وہ ہیں ایسٹرائڈز۔ اب یہ جو چھوٹے پیسز ہوتے ہیں ایسٹرائڈز کے، جن کو میٹیورائٹس کہتے ہیں، وہ زمین کے اوپر آ کر گرتے ہیں، اور سائنسدانوں کے لیے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ وہ ہمارے نظام شمسی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اس میں کس قسم کی کنڈیشنز تھیں، اور ہم یہ بھی پتا کر سکتے ہیں کہ وہ کن چیزوں کے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کافی تازہ ترین میٹیورائٹ بھی لیں، اور لوگ اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ اگر آپ گرتے ہوئے دیکھیں، آپ دوڑ کے اس کے اوپر جائیں اور آپ جمع کر لیں، اس کے باوجود حالانکہ وہ بہت اہم ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ایٹماسفیئر سے، ہماری آب و ہوا سے ایک لحاظ سے وہ گزرا ہے، تو اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ تھوڑی سی بدل گئی ہیں۔ تو اگر آپ نے اچھی طرح سے ایسٹرائڈ کو ریلی، یہ جو ارلی سولر سسٹم ہے اس کی کنڈیشنز کو اسٹڈی کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایسٹرائڈ کے پاس جانا پڑے گا، نہ کہ ایسٹرائڈ آپ کے پاس آئے۔ اور آف کورس اگر ذرا بڑا ایسٹرائڈ زمین کے اوپر آئے، آپ کے پاس آئے، تو شاید ہم ایک دوسرے سے ہم یہ بات بھی نہ کر رہے ہوں، اور وہ وہی حال ہو جو ڈائناسورس کا ہوا تھا۔ بلکہ یہ جو ایسٹرائڈز پر مشنز جاتے ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کا ایک کام تو یہی ہے کہ ہمارے نظام شمسی کی اوریجنز یا شروعات کیا تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں، جب کوئی ایسٹرائڈ جو ہے مستقبل میں وہ زمین کی طرف آ رہا ہو ٹکرانے کے لیے، اور پھر ہمیں اس کو ڈیفلیکٹ کرنا ہو یا ہمیں اس کے جو ٹریجیکٹری ہے اس کو بدلنا ہو، اس کے لیے ہمیں یہ پتہ کرنا ضروری ہے کہ وہ جو ایسٹرائڈز ہیں وہ کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، ان کی کمپوزیشن کیا ہے، ان کی ڈینسٹی کیا ہے، تاکہ پھر ہم مختلف سٹیپس لے سکیں۔ یہ ایسٹرائڈز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کئی بہت ہی زبردست قسم کے مشنز گئے ہیں۔ ایک تھا نیئر مشن، جو ایک ایسٹرائڈ جو ایروس کے نام پر ہے، اس نے اس کے اوپر لینڈ کیا۔ پھر ایک اور مشن تھا ڈان کے نام سے، جس نے آربٹ کیا اور اسٹڈی کیا۔ یہ دو ایسٹرائڈز ہیں سیریز اور ویسٹا کے نام سے۔ اب یہ جو تینوں ایسٹرائڈز ہیں، ایروس، سیریز اور ویسٹا، یہ ہماری
एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा हैं। अब एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो एक एरिया है मार्स और जुपिटर के बीच में, जहां पर बहुत सारे ये बेसिकली ये पत्थर हैं, एस्टेरॉयड्स हैं जो वहां पर पाए जाते हैं। अभी रिसेंटली 2 और मिशंस हैं जो ना सिर्फ एस्टेरॉयड्स तक गए बल्कि वहां से उनका सैंपल लेकर वो वापस आ गए या वापस आने वाले हैं। इसमें से एक जापान का मिशन है जिसका नाम है हायाबासु 2, जो अभी रिसेंटली ये एक एस्टेरॉयड रोयुगु के नाम से है, वहां से उसने उसके ऊपर लैंड किया, वहां से उसने कुछ उसके पीसेस लिए और वो जमीन पर उन पीसेस को लेकर आया। इसी तरह से एक और नासा का मिशन है जिसका नाम है ओसाइरस रेक्स। वो एक और एस्टेरॉयड जो है जिसका नाम है बेन्नु, वो वहां से उसके पीसेस लेकर आने वाला है। अब ये जो 2 मिशंस थे, हायाबासु 2 और ओसाइरस रेक्स, ये नियर अर्थ एस्टेरॉयड से चीजें लेके आए, यानी कि ये जो एस्टेरॉयड्स हैं, जो पत्थर के पीसेस हैं, वो जमीन के ऑर्बिट के करीब हैं। तो एक लिहाज से हम उनको और ज्यादा स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि वो हमें ज्यादा थ्रेटन कर सकते हैं। तो ये हमने एस्टेरॉयड बेल्ट्स के एस्टेरॉयड्स की भी बात की और ये जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं हमने उसकी भी बात की। लेकिन एक और मिशन था न्यू होराइजन के नाम से, और आपको उसके सिलसिले में ज्यादा याद होगा कि न्यू होराइजन जो है उसने प्लूटो का फ्लाई बाय किया था, लेकिन उसके फ्लाई बाय के बाद उसने कुछ और ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया। खासतौर से अभी रिसेंटली उसका एक फ्लाई बाय था, एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एरोकॉथ के नाम से। ये एक और एस्टेरॉयड है मगर ये क्वाइपर बेल्ट का हिस्सा है। क्वाइपर बेल्ट जो है ये हमारे निज़ाम शमसी के बाहर की तरफ है, नेपच्यून के आगे के इलाके में है। और जब प्लूटो को थोड़ा सा डिमोट करने की कोशिश हुई, और मेरा ख्याल है बेचारे प्लूटो को ना डिमोट करें, लेकिन जब डिमोट करने की बात हुई तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एक लिहाज से प्लूटो जो है वो क्वाइपर बेल्ट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो क्वाइपर बेल्ट में भी एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं, और ये जो न्यू होराइजन मिशन था इसने ये एरोकॉथ जो है एक उस किस्म का एस्टेरॉयड, इसने उसकी तस्वीरें भेजी। तो ये अभी हमने बात की, ये एस्टेरॉयड्स हमारे निज़ाम शमसी में 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, एस्टेरॉयड बेल्ट में, जमीन के ऑर्बिट के करीब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, और क्वाइपर बेल्ट में। लेकिन एक और जगह है जहां पर कुछ एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं, वो है जुपिटर के करीब एक जगह जहां पर बहुत सारे ट्रैप्ड हैं। इनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। ये जो होमर की जो एक एपिक थी इलियाड, ये उसके नाम के ऊपर बेस्ड हैं। और अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने तकरीबन 10,000 ये एस्टेरॉयड्स डिस्कवर किए हैं, और ख्याल ये है कि तकरीबन मिलियन जो हैं वो इस जुपिटर के ऑर्बिट के करीब वहां पर ये ट्रैप। तो ये एस्टेरॉयड्स एग्जैक्टली कहां हैं और वो जुपिटर के ऑर्बिट पर क्यों ट्रैप हुए हैं, ये दरअसल लेके आता है, ये आप में से बहुत सारे लोगों का एक फेवरेट टॉपिक है, लग्रांज पॉइंट्स। बल्कि आज जो है आप अपने दोस्तों को और अपने फैमिली वालों को भी थोड़ा सा इंप्रेस कर सकते हैं कि आज हमने लग्रांज पॉइंट्स की बात की। ये दरअसल 5 पॉइंट हैं, बल्कि मोर एक्यूरेटली ये एरियाज हैं जिनका ताल्लुक अगर कोई भी 2 बड़े ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे कि जमीन और सूरज है, या जमीन और चांद है, या जुपिटर और सूरज है, या सैटर्न और सूरज है, तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी ग्रेविटी, और अगर जब चीजें ऑर्बिट कर रही हों, और उसकी मोशन, उसके जरिए ये 5 पॉइंट्स हैं जहां पर एक लिहाज से थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है। ये ग्रेविटी और उसकी जो ऑर्बिट है वो बैलेंस आउट करते हैं। बल्कि लग्रांज पॉइंट्स का जिक्र अभी रिसेंटली काफी आया, क्योंकि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है वो जमीन और सूरज का जो सेकंड लग्रांज पॉइंट है L2, वो उसको ऑर्बिट कर रही है। तो जरा देखते हैं कि ये जमीन और सूरज के 5 लग्रांज पॉइंट्स कहां पर हैं। तो अगर आप देखें, ये जो L1 है वो जमीन से तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है, मगर ये जो पॉइंट है वो जमीन और सूरज के बीच में है, यानी कि
वो सूरज से थोड़ा करीब है। L2 पॉइंट वो एग्जैक्टली ऑपोजिट है जमीन से, मतलब ये है कि ये भी 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है जमीन से, लेकिन जरा सूरज से और ज्यादा दूर। और फिर L3 पॉइंट जो है वो जमीन के ऑर्बिट पे है, मगर सूरज के दूसरी तरफ। एक लिहाज से ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक लाइन में हैं, और ये हमेशा इसी तरह से ये जो पॉइंट्स हैं वो जमीन को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि अगर आप वहां पर कोई स्पेसक्राफ्ट रखें, अभी ख्याल होगा कि L1 पर हम क्यों कोई स्पेसक्राफ्ट रखें, तो ये बड़ी अच्छी जगह है अगर आपने सूरज को स्टडी करना है। मतलब ये है कि वो कॉन्स्टेंटली वो सूरज को वो ऑब्जर्व कर सकता है और वो जमीन को कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन भी भेज सकता है। इसी तरह ये जो L2 जहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और इसके अलावा कुछ और टेलीस्कोप्स वहां पर ऑर्बिट कर रही हैं, वो एक अच्छा व्यू देती हैं, जो कि एक लिहाज से वो पूरे आसमान को देख सकता है और सूरज की रोशनी की वजह से वो ज्यादा ब्लॉक नहीं होता। L3 जो है उसका जरा काम ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं L1, L2 और L3, वो एक लिहाज से वो फुली स्टेबल नहीं, क्योंकि अगर आप उन पॉइंट से जरा दूर होते चले जाएं तो आप एक तरह से स्लोप के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट जो हैं आप उससे दूर होते चले जाएंगे। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं, जिस तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसको थोड़ी सी उसको इंजन को सपोर्ट देनी होती है कि वो इस चीज को, इस एरिया को, इस पॉइंट को वो ऑर्बिट करता रहे। तो अब हम आते हैं L4 और L5 की तरफ, यानी कि लग्रांज पॉइंट 4 और लग्रांज पॉइंट 5। ये जमीन के ऑर्बिट के ऊपर हैं। अगर हम जमीन और सूरज के सिस्टम की बात करें, तकरीबन 60 डिग्री हमारे ऑर्बिट पे आगे और 60 डिग्री हमारे ऑर्बिट के पीछे। एक तरफ L4 है और दूसरी तरफ L5। अब ये जो हैं पॉइंट्स, और अगेन ये पॉइंट्स नहीं, ये एरियाज हैं, ये कहलाते हैं मेटा स्टेबल पॉइंट्स। यानी कि अगर वहां पर कोई छोटी चीज हो, और अगेन ये तमाम ये जो लग्रांज पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, ये दो तो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे जमीन और सूरज, मगर ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करें, उसका मास जो है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए बाकी दो ऑब्जेक्ट से मुकाबले में। तो अगर छोटे एस्टेरॉइड्स हों, वो L4 या L5 के करीब पहुंच जाएं, तो वो वहां पर ट्रैप हो सकते हैं। मतलब ये है कि ये स्टेबल पॉइंट है, एक तरह से वो एक वादी है जहां पर वो वहीं पर रहेंगे। बल्कि ये जो स्पेस एंथुजियास्ट हैं, ये उनका ख्याल ये है कि अगर हम मुस्तकबिल में कुछ कॉलोनीज बनाएं, यानी कि बहुत ही मुस्तकबिल में जहां पर इंसान जो हैं वो खला में रह रहे हों, तो वो कॉलोनीज के लिए स्टेबल जगह जहां पर ठहरने की होगी वो ये L4 या L5 होगी। बल्कि ये एक बड़ा सारा आइडिया था इस सिलसिले में, और उसके फॉलोअप के बारे में एक स्पेस सोसाइटी थी जिसका नाम था L5 सोसाइटी, और उनका कहना यही था कि हमें जो है वो स्पेस कॉलोनीज बनानी चाहिए इस किस्म के लग्रांज पॉइंट्स के ऊपर। तो लग्रांज पॉइंट्स 1, 2 और 3 जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे इन स्पेस कॉलोनीज के लिए, मगर L4 और L5, क्योंकि वहां पर अगर आप एक दफा चले जाएं तो वो जमीन को फॉलो करेंगी, जमीन के ऑर्बिट के ऊपर होंगी और वो स्टेबल पॉइंट होगा। तो अगर हम जुपिटर और सूरज के सिस्टम की बात करें, तो ये जो L4 और L5 का एरिया है वो और ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जुपिटर का मास जो है, मादा जो है, वो जमीन के मादे के मुकाबले में काफी ज्यादा है। तो ये L4 और L5 के ऊपर एस्टेरॉइड्स हैं जुपिटर के, जो ऑर्बिट के आगे और ऑर्बिट के पीछे, जो वहां पर ट्रैप हुए हैं। और इसमें से जो कुछ पहले एस्टेरॉइड्स दरियाफ्त हुए, उनको नाम दिया गया था एगामेम्नॉन, अकीलीस और हेक्टर। ये तमाम कैरेक्टर्स हैं। ये जो होमर, ये उसकी जो एपिक थी इलियाड, ये उसके ऊपर, ये जो ट्रोजन हॉर्स वाली ये जो एपिक थी, ये उसके हीरोज थे। तो अब एस्ट्रोनॉमर्स ये जो एस्टेरॉइड्स अगर उनको वहां पर मिलें इस एरिया में, तो वो उनको ट्रोजन एस्टेरॉइड्स कहते हैं,
इसके शुरू के नामों की वजह से। ठीक है, ये तो बहुत बात हो गई लग्रांज पॉइंट्स की भी। ये भी हमें पता चल गया कि ये जो जुपिटर के ऑर्बिट के करीब जो लग्रांज पॉइंट्स हैं L4 और L5, वहां पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स तकरीबन मिलियन के करीब जो हैं वो इन दो एरियाज के ऊपर ट्रैप हुए हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो साइंस के लिए क्यों अहमियत रखते हैं, और ये एक नया मिशन जो है वो उनको क्यों स्टडी करना चाहता है। दरअसल इसका ताल्लुक ये है कि एक लिहाज से ये हमें क्लूज देता है हमारे निज़ाम शमसी की ओरिजिन्स की। मोर स्पेसिफिकली ये जो हमारे निज़ाम शमसी के फॉर्मेशन की थ्योरीज हैं उनको थोड़ी मुश्किल होती है ये यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, हमें बाकी तमाम सैयारों का हमें समझ में आ गया कि किस तरह से वो जो शुरू में हमारा सोलर नेबुला था वो उससे बने, और फिर जुपिटर और सैटर्न जो बड़े गैस जायंट्स हैं उनका भी हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से बने थे। मसला ये है कि ये जो यूरेनस और नेपट्यून हैं वो हैं तो गैस जायंट्स, मगर वो काफ़ी बाहर की तरफ हैं हमारे निज़ाम शमसी के। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो चैलेंज करती थी हमारे निज़ाम शमसी के फॉर्मेशन के मॉडल्स को। तो एक मॉडल जो ये फ्रांस का जो शहर है नीस, ये उसके नाम के ऊपर है क्योंकि वहां पर वो पहले डेवलप हुआ, तो इसको कहते हैं नीस मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम फॉर्मेशन। वो ये कहता है कि गालिबन ये जो यूरेनस और नेपट्यून है वो थोड़े से हमारे निज़ाम शमसी के, हमारे सूरज के करीब थे। बहुत ज़्यादा करीब तो नहीं, लेकिन रिलेटिवली आज जहां पर हैं उसके मुकाबले में वो ज़रा करीब थे। मगर ये जुपिटर और सैटर्न के जो ऑर्बिट्स हैं उन्होंने इनको पुश किया बाहर की तरफ। तो यानी कि शुरू में जब हमारा निज़ाम शमसी बना था, ये तमाम ये जो गैस जायंट्स थे वो एक दूसरे से रिलेटिवली करीब थे साइज में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको उसने, यूरेनस और नेपच्यून को उसने थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश किया और अब वो एक स्टेबल ऑर्बिट के ऊपर हैं। लेकिन जब उनको पुश किया गया, यानी कि ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं वो माइग्रेट किए बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा जो मटेरियल है उनकी ग्रेविटी की वजह से वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उसको फेंका गया होगा। तो ख्याल ये है कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है या ख़ास तौर से कुइपर बेल्ट है और ओर्ट क्लाउड हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स वहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये जो L4 और L5 है जुपिटर का, वो छोटा सा एरिया है रिलेटिवली। हम वहां पर स्टडी कर सकते हैं कि अगर ये मॉडल सही है तो ये जो L4 और L5 में ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ किस्म की कॉम्पोजिशन रखते होंगे, क्योंकि वो इस माइग्रेशन जब हो रही थी तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के एस्टेरॉइड्स जब मुख्तलिफ जगहों से पहुंचे वहां पर। अगर ये मॉडल सही नहीं तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो जुपिटर के करीब ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं उन तमाम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं। ठीक है, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर हम इन एस्टेरॉइड्स को स्टडी करें, ये छोटे से एरिया में है रिलेटिवली जुपिटर के ऑर्बिट पे, या तो उनकी कंपोजिशन तमाम की एक जैसी होगी या बिल्कुल मिक्सचर। और अगर ये नीस मॉडल जो है सोलर सिस्टम फॉर्मेशन का वो सही है तो इसका मतलब ये है कि ये L4 और L5 ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं जुपिटर के वो मिक्स्ड होंगे कंपोजिशन में। ये तो एक साइंटिफिक जस्टिफिकेशन की बात हुई। ऑफ कोर्स वहां पे जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको स्टडी करना, उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के बारे में पता करना, ये भी बहुत एक अहमियत रखता है। लेकिन ये मिशन है क्या? तो इसका नाम है लूसी, और इसमें ये एक गाड़ी के साइज जितनी एक स्पेसक्राफ्ट है जो 12 साल तक उम्मीद है कि वो इन मुख्तलिफ एस्टेरॉइड्स को स्टडी करेगी। बल्कि जो खास बात है वो दोनों L4 और L5 यानी कि जुपिटर के ऑर्बिट के एक तरफ जो एस्टेरॉइड्स हैं उनको भी स्टडी करेगी और फिर दूसरी तरफ के भी। मगर इसका जो पहला टारगेट है, और बाय द वे ये जो मिशन है वो ऑलरेडी रवां दवां है अपने टारगेट्स की तरफ, तो इसका जो पहला टारगेट होगा वो 2025 में 2025 में वो एक एस्टेरॉइड को वो फ्लाई बाय मिशन से उसको ऑब्जर्व करेगा। ये ट्रोजन एस्टेरॉइड नहीं,
بلکہ یہ رستے میں ہے اور ایک طرح سے یہ ایک ٹیسٹ کا کام کرے گا. اس ایسٹرائڈ کا نام ہے ڈونلڈ جوہانسن, اور یہ نام ہے اس کے اوپر یہ جو سائنسدان تھے, یہ جو آرکیولوجسٹ تھے جس نے لوسی کا اسکیلیٹن دریافت کیا تھا. اب لوسی جو ہے, شاید آپ کو پتا ہو, یہ تقریباً 3 ملین سال پرانا ایک ہومنڈ, ایک اسکیلیٹن تھا جس کو آسٹریلوپیتھیکس کہتے ہیں, اور یہ ہیومن ایوولوشن کے حساب سے سب سے مشہور اسکیلیٹن ہے. تو یہ جو ایسٹرائڈ ہے اس کا نام جو ہے وہ اس لوسی کے ڈسکورر کے اوپر ہے. اس کے 2 سال کے بعد وہ پہلے ٹروجن ایسٹرائڈ کو آبزرو کرے گا, اور اس کا نام ہے یوریبٹیز. اور یوریبٹیز جو ہے, حالانکہ وہ چھوٹا ایسٹرائڈ ہے, لیکن اس کا ایک چاند بھی ہے جس کا نام ہے کوئٹہ. وہ ہمارے جیسا نہیں, کوئٹہ نہیں, لیکن یہ ایک ٹی ہے اس میں, کوئٹہ. اور یہ جو ہے ابھی ریسنٹلی 2019 میں ہی یہ ڈسکور ہوا. خیال یہ ہے کہ یہ جو یوریبٹیز ہے وہ پہلے ایک کسی بڑے ایسٹرائڈ کا حصہ تھا, لیکن جب وہ ٹوٹ گیا کسی اور ٹکرانے کی وجہ سے, تو یہ اب اس کا حصہ جو ہے وہ بچا. اس کے بعد وہاں پہ یہ جو فلائی بائی مشن ہے یہ اس کے جاری رہیں گے, اور 3 اور ٹروجن ایسٹرائڈز کو یہاں پر وہ L4 کے حصے میں وہ آبزرو کرے گا. لیکن پھر 2028 میں وہ انر سولر سسٹم کی طرف جائے گا, زمین سے وہ گریوٹی اسسٹ لے گا, اور پھر یہ جو دوسرا لگرانج پوائنٹ ہے L5 جوپیٹر اور سورج کا, وہ اس کی طرف جائے گا, اور وہاں پر وہ اور کچھ ایسٹرائڈز کو آبزرو کرے گا جن کا نام ہے پیٹروکلس اینڈ مینوئٹیس. یہ بلکہ بائنری ایسٹرائڈز ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے گرد یہ روٹیٹ کرتے ہیں, اور یہ ان ٹروجن ایسٹرائڈز کے سب سے بڑے ایسٹرائڈز ہیں. تو اس میں اسٹرانومرز جو ہیں وہ یہ پتا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ ایسٹرائڈز یہیں پر بنے تھے, یا شاید یہ کوائپر بیلٹ سے آئے ہوں, جہاں پر ہمیں اس قسم کے بائنری ایسٹرائڈز جو ہیں ان کا زیادہ پتا ہے. اب اس کے بعد یہاں پر L5 سے یہ دوبارہ سے زمین کے قریب اسسٹ لے گا, اور پھر L4 کے اوپر جائے گا. ایک لحاظ سے یہ جو لوسی مشن ہے, اسپیس کرافٹ, یہ ہزاروں سال یا لاکھوں سال یا ملین سال تک جو ہے وہ وہاں پر چلتی رہے گی, کیونکہ اس کا آربٹ جو ہے وہ خالی گریوٹی کی وجہ سے L4 زمین, L5 دوبارہ سے زمین, اور L4 یہ اس کے اوپر کانسٹنٹلی یہ ایک لحاظ سے چلتا رہے گا. اب ایک منٹ ذرا آپ سوچیں کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہمارا یہ جو اسپیس کرافٹ ہے, ہم ان آربٹس کو, ہم گریوٹی کو اتنی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک اسپیس کرافٹ کو L4 اور L5 کے بیچ میں زمین کے گریوٹی کے تحت ہم ہمیشہ کے لیے ایک لحاظ سے چھوڑ سکتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر چلتا چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نالج ہے اس سلسلے میں, گریوٹی کے سلسلے میں, آربٹ کے سلسلے میں, وہ کافی اچھی ہے. تو پھر اگر کوئی سوال یہ پوچھے کہ ایک منٹ, کیا زمین جو ہے وہ ساکن ہے یا اسٹیشنری ہے, یا کیا زمین جو ہے وہ سورج کے گرد آربٹ کرتی ہے, تو یہ عجیب سا سوال لگتا ہے, کیونکہ آپ ان چیزوں کو تو چھوڑیں, ہم یہاں پر اسپیس کرافٹ بھیج سکتے ہیں اس قسم کے ہزاروں کروڑوں سال کے آربٹس کے اوپر. تو ایک لحاظ سے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ سائنسدان جو ہیں وہ فلمکس ہو جاتے ہیں جب کوئی کہتا ہے کہ ایک منٹ, یہ آپ کو کیسے پتا کہ زمین جو ہے وہ موو کر رہی ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ آگے کی کہ اگر یہ سوال ہو کہ زمین گھوم رہی ہے یا نہیں, یہ بالکل عجیب سی بات لگتی ہے. اور ایک لحاظ سے یہ اسی قسم کی چیز ہے کہ بایولوجسٹ کے لیے ایوولوشن کا جو پرنسپل ہے وہ بالکل فاؤنڈیشنل ہے, اور اتنا ایویڈنس موجود ہے کہ پچھلے 4.5 ارب سال میں زمین کے اوپر کس طرح سے زندگی ایوالو ہوئی. تو یہ جو لوسی کا اسکیلیٹن ہے, یہ آسٹریلوپیتھیکس, یہ 3 ملین سال پرانا ہے, اور ایک لحاظ سے یہ اسی قسم کے یہ گیپس فل کر رہا ہے ہماری ایوولوشن کی انڈرسٹینڈنگ میں, جس طرح سے ہمارے سوال ہیں کہ یہ ٹروجن ایسٹرائڈز جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے نظام شمسی کے بننے کے بارے میں ہمیں چیزیں بتاتے ہیں. تو اگر کوئی سوال یہ پوچھتا ہے کہ ایک منٹ,
एवोल्यूशन नहीं हुई, ये उसी तरह से सरप्राइजिंग होता है बायोलॉजिस्ट के लिए जिस तरह से एस्ट्रोनॉमर्स के लिए अगर कोई ये कहे कि ज़मीन जो है वो तो साकिन है। लेकिन हमें इतना पता है ग्रेविटी के सिलसिले में कि ये सवाल कोई सेंस नहीं देता। इसी तरह ये जो एवोल्यूशन है वो बायोलॉजी के लिए फाउंडेशनल चीज़ है। ठीक है, इसके सिलसिले में हम मुख्तलिफ और चीज़ों के बारे में पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या रूट था एवोल्यूशन का, लेकिन क्या एवोल्यूशन हुई या नहीं हुई इसके बारे में हम उतने ही सर्टन हैं जितने हम ग्रेविटी के सिलसिले में है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। अब मैं बात ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बड़ी कूल सी चीज़ बताता हूँ। ये मैंने जैसा कहा कि ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये जुपिटर के L4 ज़मीन और L5 और फिर उसके ऊपर वापस हमेशा चक्कर लगाता रहेगा। यानी कि मुस्तकबिल में कई लाख करोड़ों साल के बाद शायद कोई इंसान ही हो जो उसको जाकर देखें कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर एक टाइम कैप्सूल मौजूद है जिसमें ये मुख्तलिफ लोगों के मैसेजेस हैं। और अब की दफ़ा यहाँ पर ये नासा ने ये कुछ जो राइटर्स हैं जैसे मशहूर टर्किश राइटर हैं ओरहान पामुक और डेवा सुबेल जो हिस्टोरियन हैं, इन्होंने उनसे सवालात पूछे कि आपका क्या ख्याल है कि आप मुस्तकबिल के इंसानों को क्या बताना चाहते हैं। इसी तरह पोएट्स हैं ये रीटा डव और बिली कॉलिंस, ये उन्होंने भी इस स्पेस क्राफ्ट में अपने मैसेजेस को रिकॉर्ड किया। लेकिन ये जो लूसी स्पेस क्राफ्ट है वो नाम जो है उसका ये लूसी स्केलेटन के ऊपर था, और वो जो लूसी स्केलेटन था वो नाम रखा गया था ये जो बैंड है या था बीटल्स, ये उनका गाना था लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स। तो एक लिहाज से ये एक अप्रोप्रिएट चीज़ है कि एक जो उसमें से सर्वाइविंग मेंबर है, वैसे तो 2 सर्वाइविंग मेंबर हैं बीटल्स के, रिंगो स्टार, जिसने ये मैसेज इस स्पेस कैप्सूल के लिए रिकॉर्ड किया। A little noisy, but I'm so excited. Lucy is going back in the sky with diamonds. Johnny will love that. Anyway, if you meet anyone up there, Lucy, give them peace and love from me.